Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Turn on your cameras, everyone. Everyone, turn on your cameras. I said. Good evening, sir. Hello. Yes, tell me. Yes, Raghav, welcome. So, complex numbers. Complex number. We started with the one. We have done with only one class. So let us continue with that class. So whatever we have done, we'll continue from that. Sir, can I off my camera, sir? My net is like now. What happened? क्या Sir, हुआ? now I can switch off, sir. Huh? Now can I switch off my camera, sir? You? Why? Okay, see here, everyone should turn on your cameras here. That is the basic, principle of the institute. Okay. So, okay, guys. So, till what we have done, can anyone of you please tell me till what we have finished? Sir, division of the complex number, sir. Division of a complex number. Now, today, let us discuss conjugate of complex number. Okay. Today, we'll let us discuss Z bar. conjugate. Actually, Raghav. So we Yes, have sir. just discussed with only one class. So I would, I would recommend, I would suggest you that. So you might have got a Google Classroom link, right? Yes, sir. All right. So Google Classroom link. So you just find out the class notes from there, and you just refer the class notes. All right. So and if you're not understanding anything out of it, you Hmm. can ask me. And just you have, in Google Classroom you can find out in Google Classroom class notes as well as class recording link as well. We are recording all this, class together, so you can just tap on that link so that you can watch a video over there. All right, you can watch Okay, a sir. video over there. All right, guys. So yes, one second. Yes, one second, guys. So guys, so conjugate of complex number, uh conjugate of a complex number. Let me write, just we know that if any complex number which is in the form of a plus ib, if any number which is in the form of a plus ib is called as a complex number, isn't it? That's what we have done. So
any number which is in the form of a plus ib, which is called as a complex number. So now basically, I was talking about Raghav. Raghav, please watch the video. If you're not understanding, you can ask me. All right. Sir, you're Okay, sharing sir. the screen, sir. Oh my goodness, I'm not sharing. One second. Yes. So conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. Conjugate of z means complex number. Try to understand it. So guys, basically, if I have something like z is equal to a plus ib, so then z bar conjugate will be denoted by z bar. Clear? Z bar will be writing as a minus ib. I think you might have know all these results, all these fundamentals. Everyone might be knowing that. And Raghav, let me ask you a question here. Raghav, till what chapter? Till which chapter you have done with your school classes? I mean, your school classes till what they have finished? Sir, we trigonometric functions, inverse trigonometric functions we have done. Acha. So you have done with a complex number as well. Yes, sir. You have done with a acha. So properties of conjugate. Properties of conjugate. All right. So conjugate of z is what? Z is equal to a plus ib. Z bar is what? A minus ib. Conjugate means उल्टा minus लिख देना, इधर जो plus दिखता है उधर minus लिख देना, बस वो होता है conjugate. As simple as this. So there is nothing much to discuss. Let us go with the next concept. So properties of conjugate. Conjugate का properties क्या क्या होता है? देखो भाई, z1 plus z2 इसको बार करेंगे तो इसको क्या कर रही है? टूट फाट के देखो, ये प्लस और माइनस होता है, ये टूट फाट के क्या हो जाएगा? z1 प्लस आर माइनस z2 बार. आ रहा है समझ? कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन देखो, z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z1 बार z2 बार. Yes, z1 dot z2. Clear? So थर्ड प्रॉपर्टी z1 by z2 होल बार, ये होता है z1 बार डिवाइडेड बाई z2 बार. Clear? So here z2 bar cannot be equal to 0. And the fourth property comes to real part of z is, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो भी हम लिख रहा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में. वी आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सच अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट for solving JEE questions. So I request you all try to listen the class carefully and revise the properties. All right. So real part of z क्या होता है? Simply z plus z bar by 2. And fifth property आता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ इजड आता है इजड माइनस इजड बार डिवाइडेड बाई 2i. ठीक है. सिक्स्थ प्रॉपर्टी आता है, सो ये देखो भाई इजड बार होल बार आता है खाली इजड. आ रहा है समझ गाइस? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? అర్థమవుతుంది అందరికి? गाइस हाउ मेनी ऑफ यू डू अंडरस्टैंड तेलुगु हियर? Sir, I understand. What about others? Abhinav, yeah, he knows somewhat. Ritvik, I guess కొంచెం వచ్చు సార్, కొంచెం క్లియర్ ఉందా? కొంచెం క్లియర్ ఉందా నీకు? కొంచెం వచ్చు సార్. अच्छा. What about others? Raghav, you don't understand, right? So cool, no issues. Look at this. So these are the properties we have here. What are the properties? z1 plus r minus z2 whole bar is equal to z1 bar plus z2. సార్ ఇది ఒకసారి ఫోర్త్ వన్ చెప్పండి సరే, మొత్తం డీటెయిల్ గా, అది అర్థం కాలేదు. Look at this here. So fourth one you want me to explain. Look at this guys. So z is equal to, I told you guys, a plus ib. Z bar what I told you, a minus ib, right? What I'm saying here, so here if I add these two together, what I'm going to get? What I'm going to get, tell me? So 2a plus 2a, yes or no? 2a, yes or no? Get my point? So now if you are not doing right, add these two, what I'm going to get? Z plus z bar is equal to a plus ib and a minus ib. ये गया. So 2a ये आता है a plus z. So ये क्या आता है? a is equal to z plus z bar by 2. अरे समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? So here what is a here? What is a here? This is real part, this is imaginary part.
Yes or no? Real part of z. Real part of z is what here? A is equal to z plus z bar by 2. Hence proved. देखो भाई आ रहा है समझ? Yes, sir. So इतना डिटेल में hence proved करने के बावजूद क्या बोलते हैं इतना आवश्यकता नहीं है. So we do not, not necessary to prove everything. So let us, let us go through the why, because this is the reason behind, saying a real part of z is equal to z plus z bar by 2. देखो भाई z हमारा को ये है z बार a minus i by, तो a minus ib दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a मिल रहा है. तो ये वैल्यू इज व्हाट z plus z bar by 2. What is a here? Real part of z. So I'm saying that real part of z is what? Half of the sum of complex number and its conjugates. All right, z plus z bar by 2. Now same thing, same it follows this thing. Imaginary part क्या होता है? इसको दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो भाई इधर देखो, इसको फिर से प्रूव कर देंगे. आपको इतना डाउट है तो हम लोग प्रूव कर देंगे, ठीक है. चलो देखो इधर प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट दैट आई वुड से दैट इट्स अ टाइम वेस्ट. ऑलराइट, बट स्टिल लुक एट दिस माइनस ए प्लस आई बी. देखो हियर ए प्लस आई बी माइनस आई बी. अरे ये गया. Sorry, here, sorry, A minus B, right? Conjugate, we are talking about conjugate, right? So this is going to be plus. So 2 times of IB. This is Z plus Z bar. So here, can I write, guys? IB is equal to IB, or let's you write B is equal to. Here B is equal to Z plus Z bar by 2I. B is what here? Real bar. Z minus Z bar. Sorry? अरे यार ये माइनस है. सॉरी ये माइनस है, ठीक है. रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार बाय 2i. ऑलराइट गाइस, Yes, sir. ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट द बेसिक. So that is what I thought, right? So z bar whole z bar क्या होता है? z ही आता है, ठीक है. So this is what basic, everyone should know these properties. ये सबसे basic property which you have to know in complex number. Are you getting my point? राघव, श्रुति, अभिनव, वसीफ, मसीहुद्दीन, क्या बोलता है आपका नाम क्या है भाई? Someone was, what is his name? He has left the meeting. राघव, जुलू, साई, ऋत्विक, अभिनव. आ रहा है समझ? Guys, are you able to understand this? Yes, sir. चलो now let us talk about a modulus. Modulus of a complex number. All right. So if I have z is equal to x plus iy. All right. So now guys, look at this modulus. Simply modulus, I will be writing this as x square plus y square. All right, समझ? ठीक है. ये होता है z is equal to what here? x square क्या होता है? Real part, simply real part whole square plus imaginary part of z whole square. You write simply. You write this. Real part of z whole square plus imaginary part of whole square. यही होता है हमारा मॉडुलस. सर हाउ आया? हाउ डिड वी गेट दिस? ये कैसा मिला मुझे? देखो भाई, ये होता है हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस. एस आर नो राघव? गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज माय ओरिजिन. एस आर नो राघव? गेटिंग माय पॉइंट बेटा? हेलो राघव? राघव is here. I think he has left the meeting. I think something went wrong with him. Raghav ji, he has left the meeting. Look at this. So no issues. So this is my real axis, this is my y axis, right? If I make a point here, which something point called, what is this point called? This is x axis, right? So this is our x distance. Which is x comma y. All right, this is x and this is y. Yes or no? Which is p of x comma y point. देखो भाई, मुझे ये डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस बेसिकली मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है. मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है. कभी भी समझो, मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन होता है modulus. Modulus is nothing but finding a distance. So distance cannot be, distance can never be negative, right? So modulus will be always positive. समझ रहे? आ रहा है समझ आपको? Modulus always will be positive. So look at this, how we are getting this formula. Now look at this, origin can be written as how?
origin can be written as 0 comma 0, which is O. So now OP, distance between 2 points, I know that x2 minus x1 whole square formula, y2 minus y1 whole square. All right, x2 minus x1 x2 क्या होता है इधर, x2 क्या होता है भाई, देखो x1 x2 minus Zero, sir. X minus 0 whole हाँ square. zero. देखो भाई, हाँ एक कुछ भी कर लो भाई, देखो x माइनस यार 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर, यही तो मुझे मिलने वाला है एट लास्ट सब ऐसा. आर यू अंडरस्टैंडिंग हियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये Yes, sir. ओपी इज व्हाट हियर, मॉडुलस ऑफ z. ठीक है, डिस्टेंस मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये होता है बेसिक कांसेप्ट, यू शुड नो. ऑलराइट गाइस, कोई डाउट इधर, कोई डाउट? टकाटक टिक टाक है ना सब, एक्सेलेंट, अमेजिंग, वंडरफुल. चलो शेल वी गो फॉर द नेक्स्ट कांसेप्ट. एस आर नो भाई? Yes, sir. अरे यार जोश. Yes, sir. Yes, sir. द जोश. हाँ अभिनव इज अबाउट टू से हाय सर. You should say man. Feel free to say whatever you feel. All right. So this are राघव, क्या हो गया भाई, मीटिंग से चले गए? So लाइट चली गई थी तो लाइट वाईफाई. चली गई थी, कोई ना, आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो बात कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, whatever हाँ, I'm sir. just talking about, are you getting my point? If you are not getting anything, you can ask me. You have a complete right to ask whatever you feel, right? सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसा आया, मुझे फिर से बता सकते हो? yes of course, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. ठीक है सर, कैन यू Okay, sir. गो बिट स्लो, कैन यू बिट टॉक, कैन यू टॉक बिट स्लो. मुझे ये लोग क्या बोलता है, मुझे क्या बोलता है यार, थोड़ा स्पीड बात करने का आदत है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से बात करता हूँ. सब लोग मेनी स्टूडेंट माइट नॉट get adapt to that pace actually. So that's what I'm asking you, is it okay to follow this pace actually? Yes, sir. Are you getting my point, right? Yes. If you do not understand my handwriting, whatever you feel, you just try to tell. Okay, all right. चलो बेटा, देखो मुझे मैंने ये पढ़ाया था बेटा अभी, मॉडुलस ऑफ z. मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना. क्या होता है ये? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कुछ भी पॉइंट p ले लो, फ्रॉम ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना. क्लियर? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ऑरिजिन, ये होता है मॉडुलस. कैसा फाइंड आउट कर रहा है? ये हमारा हो गया 0, ये p का x का y. ये कैसा आया कोऑर्डिनेट्स? हाउ डिड आई गेट दिस कोऑर्डिनेट? दिस डिस्टेंस इज x, डिस्टेंस इज y. सो आई एम जस्ट प्लॉटिंग अ point on coordinate axis which is p of x comma y. So I'm just finding out this distance by using distance between two formulas from the straight lines or from the geometry, you would say. Clear? Okay, sir. ये सब बहुत सिंपल है, ये सब देखो. Here modulus of z formula is what now? कभी भी देखो भाई, if I ask you to find modulus of any complex number, you must write real part of that particular number whole square plus imaginary part of that particular number whole square. As simple as that. Clear? Any doubt? Any doubt? No, Any no, doubt? sir. Yes. No, sir. How is the Josh? How is the Josh? अरे भाई, how is the Josh? Raghav, how is the Josh? Hi, sir. अरे चलो, good. That's how you supposed to be यार. थोड़ा दिखा दो भाई, एटीट्यूड दिखा दो इधर, कोई ना प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है, मगर पढ़ना भाई. एटीट्यूड हम लोग हाई बोल रहा है, हाई इतना इंटेंसिटी से हाई बोल रहा है तो उतना इंटेंसिटी से भी पढ़ना पड़ता है. ठीक है, वेरी गुड बेटा. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, समझ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, हाँ मुझे लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ. सी व्हाट आई टोल्ड यू नो. ठीक है, so properties, look at this first property. Let if I multiply any complex number with its conjugate, I'll be writing this as modulus of z square. ठीक है. Second property, let us go with one by one. मुझे ये सेम ही आता है. ठीक है. Third one, can I write now modulus z1 into z2 is equal to, can written as modulus of z1 into z2. आ रहा है समझ? So देखो ये होता है modulus of z1 by z2 क्या होता है? Modulus of z1 divided by modulus of z2. So z2 is not equal to 0. z2 0 होता है तो वो क्या बोलता है? अनडिफाइंड होता है, उसका काम वो काम में नहीं आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट look at this, fifth property I would say. So either z1 plus z2 is equal, इधर ये लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है. ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल मॉडुलसेस. क्लियर? सिक्स्थ प्रॉपर्टी आई कैन राइट z1 माइनस z2 ग्रेटर देन आर इक्वल हो सकता है मॉडुलस ऑफ z1, हाँ ये माइनस मॉडुलस ऑफ z2. ठीक है, होल मॉडुलस. सो नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी हो सकता है मॉडुलस ऑफ z, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिस वन.
look at this. This is a very important property. I would say guys here the important properties, let me tell you here. देखो ये जो भी है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जेईई क्वेश्चन में बहुत जगह पे यूज कर लेंगे। ये तो सबको पता है, छोटू छोटू है, ये लड्डू का प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत छोटू प्रॉपर्टी है ना, वो सबको पता चल जाएगा, मगर बच्चों ने थोड़ा इधर कंफ्यूज हो सकता है प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 5 पे, तो उस पर थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अरे समझ गाइस, गेटिंग माय पॉइंट चिल्ड्रन, गेटिंग माय पॉइंट? So Yes, please, sir. after going home, please revise all these properties. So why? Because these properties are going to play major role in solving your JEE sums. All right. So look at this here. चलो, now 8. So now if I write z1 plus r minus z2, इसको थोड़ा स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या उछल के पड़ेगा ऐसा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस r minus 2 times of real part of z1 into z2 बार। बेटा आ रहा है समझ? ये होता है हमारा, ध्यान से रख लीजिए। देखो इधर z1 बार रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 बार, समझ रहे हैं ना? आ रहा है ना समझ? इधर भी ध्यान से So देखो। इसमें expand करिए ना sir, this one, like where will imaginary part go? 1 second, वे कहाँ गया? इधर देखो भाई, ये look at here, imaginary part will be here. हाँ, what's your doubt? Someone is asking. Sir, just now mod z1 plus z2 whole square, ये उसका imaginary part कहाँ गया लास्ट में? हाँ देखो भाई, आपको ये आ रहा है, हाँ कहाँ गया ये समझ रहे हैं ना? हाँ वो कहाँ चले जाता है, वो जाता है, मैंने बताऊंगा आपको। z1 देखो भाई, ये ले लो a प्लस ib1, ठीक है। z2 ले लो a2 प्लस ib2, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को ऐड करके ib1 a प्लस a2 प्लस ib2, ठीक है। इसको ऐड करके बेटा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आ रहा है ना समझ? देखो ये दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर लीजिए, एंड आफ्टर मेकिंग a square of this is equal to sum of individual squares plus 2 times of रियल पार्ट ऑफ z1 into z2, वो सब मिला के 1 हो जाएगा, उसी में रियल पार्ट ही बन जाएगा इधर, वो पूरा टर्न आउट हो जाएगा, एवरीथिंग विल गेट टर्न आउट एंड यू विल बी मेकिंग दिस एक्सप्रेशन एट लास्ट। एंड गाइस ये LHS will be equal to RHS, आपको प्रूफ चाहिए तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस प्रूफ गाइस, लेट मी नो इन टुमारोज क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? चलो परफेक्ट, ऑलराइट। Yes, sir. चलो भाई इधर देख रहे हैं, आ रहा है ना समझ? जस्ट यू इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस, यू सेड x plus iy, ऐसा भी लिख सकते हो, x1 plus iy1, x2 plus iy2, just make it out, solve it out. Tomorrow everyone must tell that in tomorrow's class. And guys, I think tomorrow we don't have class Sunday, right? And I wanted to tell something to you guys. Actually every Sunday we are going to write a test over here, clear? Every Sunday, all right? Every Sunday, but not tomorrow. But because since we have taken only 2 classes, this is a second class for you guys, so we couldn't cover as many chapters as possible. So probably next coming Sunday, not this Sunday, I mean up the next following Sunday, next week, we'll be connecting the complex number, not tomorrow guys, like coming Sunday, all right? So probably on tomorrow 4th, right? On 10th, 11th, on 11th we will be writing our test, clear? On 11th we'll be writing our test on complex number. आ रहा है ना समझ? आ रहा है सबको? चलो ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं अभी दूसरा कॉन्सेप्ट पे, आर्गुमेंट पे जाते हैं। आर्ग्यू नहीं करेंगे, आर्गुमेंट पे चले जाएंगे सीधा, ठीक है। हाँ आर्ग्यू, ये आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? एनीवन? Sir, we find the angle between them, yes sir. of course, and the angle between what? Imaginary and the real part. रियल पार्ट नहीं बेटा, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। हाँ मुझे ये बताइए बेटा, देखो हाँ whatever देखो, हाँ सही है, a plus ib1, आई एम आस्किंग यू, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ नहीं तो देखो, आई एम गिविंग यू z is equal to 3 plus 4i. What is the real part of this complex number and imaginary part of this complex number? Tell me. 3 and 3 is real and 4 is imaginary. 3 is real and 4 is imaginary. हाँ देखो बहुत सिंपल है, 4 not 4i here, not 4i if you are writing imaginary part of z is equal to 4i, आप ऐसा लिख रहे हो तो वो ऐसा मार्क्स डालेगा, ठीक है। कैसा डालेगा? ऐसा 2 आंख बना के ये डाल के घर भेजेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना कभी भी। देखो only 4 guys, many children will make mistake here, so I'm just imaginary part का मतलब only 4 होता है। I is what here? What is I here? Don't tell me iota, भाई iota नहीं होता है, Imaginary under root minus 1. imaginary होता है वो, imaginary, it could be anything, so that's we will be taking a coefficient of that, clear? So imaginary part of that is what? Only that coefficient of I, but not I, clear? हाँ देखो here argument of z क्या होता है? Angle between real and imaginary axis,
देखो बेटा ये ऑरिजिन है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगा एनी पॉइंट, लेट अस से दिस इज पी ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है। इसको ले लो ऐसा पॉइंट। अरे भाई ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। देखो भाई व्हाट आई टोल्ड यू, नाउ इफ आई मेक ए सर्किल ओवर हियर, इफ आई मेक ए सर्किल लाइक दिस, ये क्या होता है, इफ आई मेक ए सर्किल लाइक दिस, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, रेडियस, नो रेडियस, समझ रहे हैं। नाउ आई टोल्ड यू, हाँ आई टोल्ड यू ओपी, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ओपी इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ z, यस और नो, कैन आई राइट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल r, भाई ये मॉडुलस ऑफ z ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल r। हाँ सर। नाउ हाँ अभी देखिए ध्यान से, हम तो इधर ये एंगल बन रहा है ना, इधर एंगल, ये एंगल जो भी बन रहा है ना इधर, कहाँ ये वाला, ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। आई थिंक यू माइट हैव लर्नड इन योर स्कूल स्टेज, दिस इज एंगल, विच एंगल, ये जो एंगल है ना, ये कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, एक सॉरी क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, ठीक है। दिस मस्ट बी मेकिंग यू नो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, that is what called as argument of a complex number, making an angle between real and imaginary axis in anti-clockwise direction, that is going to be called as a argument of a complex number, right? So let us talk about now argument of z, argument of any complex number which gives me what, कौन सा होता है, क्या होता है क्या भाई, देखो होता है x, ठीक है, ये होता है y, ये होता है y, ठीक है, ये होता है x। Guys, I'm not good at diagrams, I'm sorry, I'm not good at making these lines and all, so one second, इसको बना दो ना ऐसा, इसको बना दो ना ऐसा, ठीक है। हाँ मुझे बताइए भाई आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, अभी tan थीटा होता है, आई थिंक यू आर अलाउड, tan थीटा क्या आता है इधर देखो, बताओ मुझे, व्हाट इज tan थीटा And हियर, theta is nothing Yeah, but y by x, sir. हाँ स्लोप Y होता by है x. थीटा। सॉरी, सर tan थीटा इज स्लोप। tan थीटा इज स्लोप, वेरी गुड। भाई ये क्या हो रहा है, इसको रफ कर देंगे भाई, थोड़ा क्लियर करेंगे डायग्राम को। अरे यार ये होता है थीटा, ठीक है, अभी समझ, अभी देख लीजिए गाइस, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y by r, you y by x, ये y क्या है इधर, y क्या है, व्हाट इज y हियर, Imaginary part and loop. हाँ look at this, if I take z is equal to x plus i by guys, हाँ look at this, here argument कभी भी होता है बेटा, argument of z is equal to tan theta is equal to, ये क्या होता है, imaginary part of z divided by real part of z, आ रहा है समझ, ये होता है आर्गुमेंट, बस इतना ही बेटा। देखो बेटा आर्गुमेंट क्या होता है, मुझे बताइए भाई आर्गुमेंट क्या होता है, सिंपल सवाल, सिंपल आर्गुमेंट, व्हाट इज आर्गुमेंट इज इक्वल, कैन आई राइट नाउ tan इनवर्स, आर्गुमेंट इज मतलब व्हाट इज आर्गुमेंट, ये थीटा भाई, थीटा क्या होता है, अरे यार ये आर्गुमेंट है ना, ये आर्गुमेंट मतलब थीटा है ना, थीटा फाइंड आउट करना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, कैन राइट सिंपली, यस और नो, यस सर। आ रहा है समझ, हाँ देखो Yes, sir. अब मुझे अब इसको देखो बेटा, इसको इसको कैसा रिमेंबर कैसा करेंगे, हाउ टू रिमेंबर दिस बेसिकली, देखो मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको योर टीचर्स माइट हैव टॉट यू इन अ वेल मैनर, आई एम नॉट गोइंग दैट मच डिस्कस, मुझे भाई मुझे हमने बुलेट पॉइंट्स, वी आर लर्निंग ओनली बुलेट पॉइंट्स फॉर योर सॉल्विंग जेईई क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये होता है, इधर याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये छोड़ो, ये बात नहीं है हमारा इधर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गाइस इफ थीटा, इन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है, इधर पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, आज नहीं पढ़ रहा है अच्छे, हाँ ये माइनस पाई बाई थीटा, ठीक है बेटा। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, if I ask you to find out argument of any complex number, then you must be following that, you must follow this rule actually, how we supposed to implement this, and all will be solving in your JEE questions, you just no need of worrying about it। so now let us go forward, ये इसके याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, इसका ये कॉन्जुगेट ये होता है, इसका कॉन्जुगेट ये होता है, ठीक है। इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बस इसको ऐसे याद रख लेना, बस जेईई पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू विल बी you can read out the proof everything goes in your NCERT syllabus, in your board syllabus whatever, proof and all। so याद रखने का तरीका बता रहा हूँ जेईई प्रॉब्लम्स के लिए,
आ रहा है समझ? नाउ गाइस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है? प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द Sir, प्रॉपर्टी? sir, what is the principal value, sir? Principal value. क्या बोल रहा है? Something like we say principal value, no, sir. हाँ The term. वो क्या है, sir? हाँ बेटा देखो, Principal. प्रिंसिपल, हाँ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, हु इज आस्किंग दैट? अभिनव, sir. हाँ हाँ, अभिनव. अभी नो, अच्छा बेटा Yes, sir. देखो, हाँ प्रिंसिपल वैल्यू, देखो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ने प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ठीक है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हाँ देखो बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी इसका होता है, इट विल बी ऑलवेज लाई बिटवीन पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई, ठीक है? ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। इसका रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता है, ठीक है? उसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, यू गॉट, यू नो, उसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। Basically, we'll be solving JEE questions based, mostly all JEE questions will be on principal argument only, not on argument. We'll be solving all JEE questions based upon. We'll be solving all JEE questions on principal argument only, not argument. Look at this, principal argument means what? It will be the range of principal argument will be minus by 2y. ठीक है? ठीक है, आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? यही होता है बेटा, आ रहा है ना? Yes, आया? sir. Yes, sir. Based upon principal argument Yes, only, sir. using this, you know, whatever the property I told you, based upon these properties we'll be solving the question. चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है? वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। नेक्स्ट, एक मिनट भाई, अरे यार ये वाइट क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर से? एक मिनट भाई, थोड़ा ये वन सेकेंड बेटा, ठीक है? ठीक है, नो प्रॉपर्टीज, हम लोग जल्दी से चले जाएंगे प्रॉपर्टीज। बस वी शुड नॉट टेक मोर देन, यू नो, more than actually one period to finish all these answers actually, but you know we'll still we are taking much time to finish, no issue. Already everyone have done with this complex number, right? So properties of argument, ठीक है बेटा? मुझे और ये क्या होगा ऐसा? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज यू हैव लर्नड, टेल मी? आर्गुमेंट ऑफ, बेटा देखो, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, ये क्या होता है? देखो बेटा, सिंपली आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई होता है, 2k पाई। इधर k क्या होता है? वेयर k इज इक्वल टू व्हाट, बताओ? 0 1 -1, ये बिलोंग्स टू क्या Up होता to है? n minus. आ रहा है समझ? हाँ देखो, मैंने क्वेश्चन, व्हाट एवर द क्वेश्चन गाइस, यू नो, जस्ट हम लोग क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस है ना, उसको उठा के इफ यू टेक आउट दोस क्वेश्चंस, इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर्स ऑफ जेईई एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो व्हाट है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी है गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। सो वट एवर वी हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग थ्रू दैट। वन सेकंड, alright guys, look at this. So argument of z1 z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2 plus 2k pi. So next, whatever important, whatever the, जो you know, I'll tell you one thing here. So JEE प्रिपरेशन के लिए गाइस हम लोग क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट को पढ़ना है।
आपका school classes, you might have gone through that. Here, why you guys are taking a tuition here? Because to make sure that to learn whatever required, आपको जो भी required है, जो भी requirement है जेई के लिए वही पढ़ेंगे हम लोग, उससे ज्यादा कम पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट है। हम लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, you guys have done with the 12th, now you are in 12th, right? Now you are Yes, 12th, sir. right? Now you are 12th, yeah। हम हमारे पास क्या बोलते हैं जेई मींस in January exam, guys। In January 6 months. 2022 you'll be writing your JEE, right? First attempt। So still how many months you have? This is a 6 months. 6 months। तो ये 6 months में हम लोग क्या करेंगे, क्या कमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये 6 months में उसके हिसाब से जाएंगे। 6 months मतलब भाई and girls, look at this here, 6 months guys, 6 months will be finishing in 6 days, I'm sure। It will be, it will be seeming like that, it seems that 6 months जो भी भाई 6 days में खत्म हो जाए, ऐसा लगता है 6 months। अरे यार जुलाई में है, जुलाई में सूरज सर पढ़ाता था, अरे जनवरी में हम लोग लिख रहे हैं, तो ये मीन्स कितना देर कितना जल्दी हो गया भाई टाइम, ऐसा लगता है भाई। तो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग टू एवरीवन हियर, प्लीज मेक श्योर दैट माइंड इट that you have to make sure that you have just 6 months of time, 6 months of time। ये 6 months में क्या क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, what to read what not to read। as a JEE aspirant, as a competitive aspirant, you must know that what exactly we must read and what exactly we must not read। वही होता है स्मार्ट वर्क। बच्चों ने क्या करता है, अरे यार जो भी आया माइंड में, जो भी दिखे आंखों में वो पढ़ लेंगे। ऐसा पढ़ेंगे तो क्या बनता है भाई, परसेंटाइल नहीं मिलेगा, परसेंटाइल ना भी कभी भी हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैंने ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, ये बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसा कभी भी नहीं पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक सॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, पक्का मिलता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक क्वेश्चन। तो हम लोग वही वी शुड मिस आउट दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग, हमारे पास फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी नीड नॉट टू बी गो थ्रू दैट एंटायर बुक। 50 बुक को उठा के पढ़ना नहीं, जरूरत नहीं है उतना, ठीक है? क्या पढ़ना है वो स्ट्रेटजीज के लिए हम लोग ये ट्यूशन ले रहे हैं, ठीक है? क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फॉर नोइंग दैट, फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर टेकिंग दिस ट्यूशन। सो उसका फायदा पूरा से पूरा उठाएंगे, ठीक है? आ रहे ना समझ, आ रहे ना सबको? अंदर कर दो तुमका तमिलू, बॉयज एंड गर्ल्स, गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है? सो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग इन योर स्कूल स्टेज। एंड हियर आई एम टेलिंग यू अगेन, हम लोग इधर पूरा डिटेल से प्रूफ हम नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन आ रहा है समझ? क्वेश्चंस, आई एम रिपीटिंग अगेन गाइस, वी आर गोना सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। हम लोग जितना क्वेश्चन एज मोर प्रैक्टिस as you more practice you're gonna get more marks। practice makes you man perfect, practice makes man perfect। we have that quote, right? practice makes man perfect। जितना प्रैक्टिस करते हैं तो उतना हमारे पास क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जितना कॉन्फिडेंस मिलता है तो उतना हम लोग अच्छे से परसेंटाइल गेन कर पाएंगे। समझ रहे ना? आ रहा है समझ गाइस? गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है ना सब उसको? एक मिनट। Yes, sir. Yeah, I got a call from your yeah, I got a call from Manoj sir। चलो, look at this, understood, right? Understood guys? आ रहा है समझ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? guys, I'm just telling you as a aspirant, as a JEE aspirant। मैं भी लिखा था JEE aspirant, मैं भी लिखा था JEE 2000, हाँ, as a JEE aspirant I'm telling you guys, हमारे पास इतना, जब when I wrote that JEE test, हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं थे guys। हम लोग whatever we read, we used to read in ऑफलाइन बुक्स लाओ, सॉल्व करो, जाओ एग्जाम लिखो भाई, उतना ही। हमारे को पता नहीं ये जेई मेंस का क्या बोलते हैं, कोचिंग क्या होता है, इसका आईआईटी का कोचिंग क्या होता है, जेई का मतलब क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, कितना क्वेश्चन पढ़ने होता है, कितना क्वेश्चन नहीं पढ़ने होता है, क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है। बस हम लोग मैंने तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? तेलंगाना स्टेट से, हम तेलंगाना स्टेट बिलोंग एमसेट एग्जाम, विल बी राइटिंग एमसेट एग्जाम, वी यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एमसेट, दैट्स ऑल।
we used to not prepare for JEE एग्जाम्स करते थे, मगर हमको पता था JEE एग्जाम होता है ऐसा, हाँ इतना 360 मार्क्स होता है, तो उसका हम लोग पेपर कभी नहीं सॉल्व किए थे हम लोग उसके पहले, ठीक है, हम लोग वी नेवर सॉल्व दैट. सो लाइक एज ए बेसिकली आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, as an average student, as an average student, just got cracked JEE means. Why can't you guys, like brilliant student, you have that much resources as well. As an average student like I cracked JEE, then why can't you guys? All right, it's not gonna be that much difficult, guys. I'm telling you, if you are as a graduate student, I'm telling you that if you are getting into NITs and IITs, guys, if you are going to the NITs and IITs, and let us compare the state colleges. Let us not talk about IITs first. Let us talk about state colleges. Sorry for interruption. Why? Because let me make a clear point here. State college and NITs. आ रहा है समझ? आ रहा है? So state college में क्या होता है guys? If you are studying in state college, what we tell you? Let me tell you the advantage and disadvantage. Look at this. State colleges, guys, you will be not improving your communication skills. Number one point. नो कम्युनिकेशन स्किल्स, या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा से बढ़ेगा. एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा इधर, ठीक है. हम लोग मिंगल अप, सोशलाइजेशन इधर बहुत ज़्यादा होगा. इधर होता है मगर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं कम होता है, इधर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. वाई? बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द इंडिया. So you'll be getting such a lot of friends, such a lot of good friends to engage yourself in a various activities, various clubs, I would say, various organizations, to participate yourself, to mingle up yourself, to to improve your personality development, to improve your communication skills, to improve your leadership qualities. All right, to improve your what I would say, to improve your profile, basically, to improve your profile. Profile का मतलब क्या होता है? Profile picture नहीं होता है. प्रोफाइल का मतलब होता है आपका कैरियर बिल्डअप, कैरियर का प्रोफाइल, ठीक है, आ रहा है ना समझ? वो बिल्ड आउट करने के लिए, फॉर बिल्डिंग अप दैट गाइस, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट गेट इनटू द NITs and IITs. ऑलराइट, you must get into the NITs and IITs, guys. Alright, for getting into the NITs, what must we need to follow? What exactly we require for getting into the NITs? Alright, what exactly we must avoid in this time, in this less span of time, what we must avoid for getting into the NITs? That kind of josh, that kind of attitude you must get in yourself. No one is going to tell you guys. I'll be telling for one time. I'm just taking 5 minutes of extra time. I'm just telling you all these points. Actually, if you have your relatives, if you have brothers, cousins, who are studying in NITs and IITs, they might teach you, they might guide you, but not as like अरे यार आके उठा के क्या बोलता है, हर एक दिन सुबह उठा के पढ़ा के इतना लाइक क्या बोलता है, लाइक बच्चों के तरह, लाइक नो वन इज गोना डू स्पून फीडिंग, राइट? स्पून फीडिंग, लेट अस से स्पून फीडिंग कोई भी नहीं करेगा ना. आपको होना चाहिए, यू मस्ट नो, आपके अंदर होना चाहिए. यू गाइस शुड नो दैट your mentality, your mindset supposed to be like, I have to get into the NITs and IITs, at least a top 10 NITs, top 1 9 top 2 at least top 10 NITs. I'm just telling you guys, state NITs are far better than state colleges in terms of everything, in terms of placement, in terms of your personality development, in terms of your club activities, everything. I would say everything, whatever जो भी लो भाई, 110% NITs बहुत आगे होगा, ठीक है. उसीलिए मैंने बोल रहा हूँ आपसे, सबसे एक से नहीं, सबसे मेरा बात सुन लो भाई. 110% you have a good life scope if you are just getting your graduation over there, and you can go for your highest as well. You can pursue your MBA, you can pursue your masters. After your graduation you can pursue your masters, MBA, आपको जो भी चाहते हो, GRE, GMAT जो भी लिख सकते हो, CAT एग्जाम लिख सकते हो, आपका हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हो अब्रॉड में, फॉरेन स्टडीज में, आई मीन लाइक फॉरेन कंट्रीज में. If you are from NITs, guys, you can just get into the MS, I mean Master of Science, higher studies very easily. आप स्टेट कॉलेज में तो होता क्या, स्टेट कॉलेज में पढ़ रहे होता है तो क्या होता है, if you are studying in state college होता है less there are getting into the higher studies, उधर ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन NITs को देता है. MS कॉलेज में भी, I mean MS करने के लिए भी, for if you are writing GRE exam after your graduation, you will be writing your GRE for pursuing MS. सो वो NITs को ज़्यादा प्रायोरिटी करता है, ठीक है. वो NITs एंड IITs से जो भी है उसको ज़्यादा उसका प्रोफाइल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है. उसीलिए मैंने बोल रहा हूँ, सो लेट अस नॉट गेट इनटू द एनी स्टेट कॉलेजेस, लेट अस गेट इनटू द NITs. अगर करेंगे तो NIT में, नहीं तो AIT में. उसके अलावा स्टेट कॉलेज में नहीं करेंगे. हम लोग, हमारे पास 4 अटेम्प्ट है, वी हैव 4 अटेम्प्ट. कोई ना कहीं ना कहीं, अरे यार ये अटेम्प्ट में आपका हार्डवर्क पे ऑफ तो करेगा ना. यस और नो गाइस?
Yes, अंडरस्टैंड? sir. अरे गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है समझ में? आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आ रहा है समझ? इंटेंसिटी बढ़ रहा है ना आपको? ये इंटेंसिटी आपका हर दिन होना चाहिए। अरे यार सुरेश सर एक दिन बोल रहा है तो एक दिन के लिए इंटेंसिटी रखेंगे, कल क्या बोलता है आराम से सो जाएंगे खा के, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आ रहा है समझ? इंटेंसिटी हमेशा रहना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? मुसब, वसीउद्दीन, आकिल, व्हाट इज योर नेम, श्री श्रुति, getting my point children? Are you understanding my point? Yes, Is there sir. anyone who doesn't Yes, sir. understand Hindi? Actually I'm talking somewhat in Hindi sometimes. किसी को नहीं आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है ना हिंदी समझ? आ हाँ रहा है सर. समझ को? हाँ भाई, if you are not understanding, I'm 110% comfortable with English. I can talk English, so 110% will teach in English only. आपको नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में तो हिंदी में पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है भाई, तो एक्सप्लेनेशन करने में भी थोड़ा मजा आता है, उसीलिए हम लोग sometimes will be not talking in English, so comfortable होता है ना उसीलिए. So guys, this is what I would like to put upon from my side, and I would request to everyone, I would request to all guys, so make sure that you guys are reading well and you are implementing your plans and everything in a well manner. All right, so I hope you understood. Let us get into the class now. All right, chalo. One second, ये क्या हो रहा है? एक मिनट. हाँ, so ये होता है भाई आर्गुमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया. सेकंड प्रॉपर्टी argument of z1 by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2 plus 2k pi. इधर ये k है ना, where k ये सेम ही होता है सब जगह, everywhere this k is going to be same guys, either -1 +1 or 0. ठीक है, ये भी आंसर. whenever we are solving the question you will get to know where we are using all this. okay, देखो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. देखो argument of z power of n is equal to n into argument of z plus 2k pi. ये k होता है बिलोंग्स टू z एवरीवेयर. ठीक है, इधर भी z. ठीक है, देखो इधर क्या करना है, थोड़ा इसको उठा के इधर भी जाना पड़ता है. ठीक है, ये n को क्या करना है, ये n है ना, दिस n, मेक दिस n जंप टू इन फ्रंट ऑफ आर्गुमेंट. इसको उठा के इधर फेंकेंगे तो कहाँ पड़ेगा वो, आके आर्गुमेंट के सामने. कहाँ गिरेगा, ఆర్గ్యుమెంట్ కి సామ్నే. ఎక్కడ వచ్చి పడుతుంది, ఇక్కడ వచ్చి జంప్ కొట్టిందంటే ఇక్కడ వచ్చి పడుతుంది అది, సో ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటుంది అది, సో इधर आके बैठेगा. ठीक है, आ रहा है समझ? देखो ये तरीका याद रखने का तरीका. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ यूलर फॉर्म. ये होता है प्रॉपर्टीज. ठीक है, हम लोग पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है बताइए एनीवन? श्रुति, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज पोलर फॉर्म? I don't know, sir. ओके, नो इश्यूज. अभिनव? Sir, don't know, sir. No issues. Anyone? Polar form basically guys, if they might have taught you please revise your class notebooks. x प्लस है भाई, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया. ठीक है, मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया. देखो बेटा इधर ये होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा ऑरिजिन होता है. ठीक है, दिस इज माय पॉइंट एज आई टोल्ड यू. ठीक है, पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये होता है हमारा थीटा. सी थीटा सपोज टू मेक इट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने आर्गुमेंट बताया था ना, आर्गुमेंट इज व्हाट, एंगल बिटवीन द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, राइट? सो इधर क्या होता है, इधर भी थीटा व्हिच मेकिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, हाँ देखो इधर होता है ये, इधर x होता है मॉडुलस ऑफ z cos थीटा, व्हिच कैन मॉडुलस ऑफ z. ये क्या होता है बेटा, मॉडुलस ऑफ z क्या होता है इधर बताओ? ये मॉडुलस ऑफ z हमारा रेडियस ही है ना, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू गाइस दिस मॉडुलस, ये होता है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r. ये होता है ना, इफ आई मेक अ सर्किल आउट, ऐसा Yes, नो sir. R. Yes, sir. It is. r cos थीटा. तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू r cos थीटा. ठीक है, हाँ नाउ y, ये इधर x पॉइंट y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ भाई. आई एम राइटिंग x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इन पोलर फॉर्म, राइट? हाँ, ये होता R है sin theta. ये r sin थीटा, वेरी गुड, r sin थीटा. तो हो गया x का y कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये होता है पोलर फॉर्म. नाउ हियर थीटा, देखो बेटा इधर थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल आर्गुमेंट ऑफ. ठीक है, आ रहा है समझ? देखो अभी लिख देंगे हम लोग इसके बावजूद, देन x प्लस iv कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ z ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा, i sin थीटा.
ये होता है हमारा पोलर फॉर्म। आ रहा है समझ? कोई डाउट? Sir, polar and amplitude form is same, sir. सॉरी, Like polar and amplitude. yeah, see, it will be like you will be learning about, yes, you will be learning about almost same Euler form, ये सब interlinked to each other, whatever you are telling there will be same everything, clear? वो इंटरलिंक होता है एक। मैं पीपीटी शेयर करूंगा, पीपीटी नहीं क्या बोलता है, ये क्लास नोट शेयर करूंगा। आप जो बोल रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक दे विल बी इंटरलिंक टू ईच अदर, almost same, like now I'll be telling about Euler form. Euler form be will be writing from polar form only. Amplitude form whatever you are saying that will be same, clear? हाँ अभी देखिए, Okay, sir. Sir. देखो ये आ रहा है समझ बेटा? ये क्या होता है, z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। z का मतलब देखो z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, ये मॉडुलस ऑफ z इज व्हाट हियर, r, ट्राई टू रिमेंबर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोलर फॉर्म बेसिकली, दिस इज अ पोलर फॉर्म। ये होता है हमारा डेफिनेशन, ये वाला फॉर्मूला पोलर फॉर्म का, ठीक है? हम लोग अभी लिखेंगे यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म, लेट अस टॉक अबाउट यूलर फॉर्म, ठीक है? यूलर फॉर्म इज व्हाट हियर, z इज इक्वल टू r into e to the power of I theta, ठीक है? ये होता है यूलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? ये होता है पोलर फॉर्म, z इज इक्वल मॉडुलस ऑफ z ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है यूलर फॉर्म, आई मीन पोलर फॉर्म ना, ये यूलर फॉर्म, ठीक है? इधर देखो बेटा r इज इक्वल क्या होता है, फिर से मॉडुलस z होता है, एंड थीटा इज व्हाट, ये होता है सिंपल, ये होगा बस, ये होगा बस, ये याद रखना बस, ये याद रखना। नाउ गाइस लुक एट दिस हियर, नाउ लेट मी मेक ए पॉइंट ओवर हियर, नेक्स्ट डी मोवी, Sir, ये फिर से सर एक बार the previous form sir. ये वाला हाँ sir. कोई ना Once again, sir. हाँ कोई ना देखो बेटा ये सेम ही है बेटा। देखो ये क्या होता है, आर इज इक्वल मॉडुलस ऑफ z, ठीक है? थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है? ये अगर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ यूलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इज इक्वल r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। e क्या होता है इधर, व्हाट इज e हियर, एक्सपोनेंशियल, X. हाँ एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज दिस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर ऑफ i थीटा, getting my point? This will be my Euler form. We'll solve the question, many questions, जितना भी क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? मगर हर साल भर यही चैप्टर नहीं कर सकते भाई, you know entire year we won't be solving this question, we won't be solving this chapter alone, so we'll be solving, but almost we'll be covering almost everything, okay? चलो de Moivre's theorem क्या पढ़ाता है, सेम ही है भाई। डी मोवियस थ्योरम में सिंपल एक होता है, सेम एज लाइक एज पोलर फॉर्म, cos थीटा होता है, ये i sin थीटा होता है, ऊपर अब n होता है। ये क्या करेगा, ये n जाके इसको डैश देगा एंड एज वेल एज इसको डैश देगा, फिर से क्या बतेगा, cos, ये थीटा के बाजू में आके बैठ जाएगा, ठीक है? i sin n थीटा, ठीक है? ये होती है, दिस ऑल थिंग्स यू मस्ट हैव लर्नड इन योर स्कूल स्टेज, आई मीन स्कूल स्टेज बताओ, आपका क्लास टीचर, मैथ्स टीचर पढ़ाया होगा, ठीक है? इधर n क्या है, व्हाट इज n हियर, n इज बिलोंग्स टू क्या है, व्हाट इज दैट, Integer. इंटीजर, हाँ ये होगा, ठीक है? हम सी मैंने जो भी लिखा रहा हूँ आपको सब, ये सब क्या है, फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज, ये सब याद रखो। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब आपको इसका एप्लीकेशन पता होगा, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको एप्लीकेशन पता होगा, ठीक है गाइस? इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन कॉपी, फटाफट कॉपी कीजिए। लेट मी हैव सम वाटर। Sir, can you explain de Moivre's theorem again? हाँ लुक एट दिस, डी मोवियस थ्योरम क्या होता है बेटा, देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा सेम, cos थीटा प्लस i sin थीटा सेम, x and y coordinate will be same, x is what, cos theta is what here, real part, Real. I sin theta is what, imaginary part. de Moivre's theorem will be in the form of this one, ठीक है? एंड इसका रिजल्ट होता है ये n जंप करेगा इधर, लुक एट दिस हियर, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, एंड n is belongs to z, अरे Yes, sir. Understood, sir. and someone was asking amplitude, right? Amplitude form, look at this now. मैंने ये बताया था ना बेटा, वो क्या बोलता है, आर्गुमेंट, टेंजेंट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, कहाँ गया एम्पलीट्यूड फॉर्म,
हाँ ये होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज बिटवीन 0 to पाई। 0 to पाई मैंने ये बताया था ना, 0 से पाई लेके 0 से पाई, ये हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट मी मेक ए पॉइंट हियर। हु आस्क्ड दिस डाउट? कौन बताया था ये? सर अभिनव सर। अभिनव। हाँ मैंने भूल जा रहा हूँ यार, सबका वॉइस एक ही लग रहा है मुझे। सो बेसिकली ये होता है एम्पलीट्यूड। टेंजेंट ये कभी भी नहीं पूछेगा, मत वरी, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट यू शुड नो दैट टेंजेंट वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ you write y by x or yx, you write y by x, ये मॉडुलस रख लो, ये होता है एम्पलीट्यूड फॉर्म, ठीक है। एम्पलीट्यूड फॉर्म ये ऑलवेज इट लाइज बिटवीन व्हाट 0 to पाई, इसका रेंज होता है 0 to पाई, ये बस याद रखना, बस इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। 0 to पाई मस्ट लाइट बिटवीन, इट मस्ट लाइट बिटवीन 0 to पाई, इट मस्ट लाई बिटवीन 0 to पाई, समझ रहे हैं? आ रहा है समझ? Okay guys, so till whatever we have gone through, that is the concept of today's class. So I think we have taken much, we have discussed many formulas as the part of your complex number. I would request you everyone, I would request you all, please go through all these properties. I'm going to ask the properties of अरे यार ये मुसब वसीउद्दीन को प्रॉब्लम क्या है यार, वो फिर से ज्वाइन हो रहा है। Okay guys, 1 second, let me stop recording here.